Hello students, so let us continue with this animal classification chapter. So in last lecture we have studied the phylum Cnidaria. Okay, example was Hydra. So remember, I think so, right? So today now we are going to start with the next phylum. Okay, before that, do you know bath sponge? This is a black color and somewhat round shaped animal. Its body is mainly made up of fibers of protein spongin, and due to this they have a good water holding capacity. See, generally today also we use artificial sponge, ठीक है, जिसे पोछा बोलते हैं, to clean our floor of our house. Okay, but initially traditionally in olden days actual sponge was used. It was used for bathing during the old days. Besides, it was used for manufacturing of pillows and cushion. They were also used as wetting material for sticking post stamps and counting for the currency notes. Okay, to count the notes we generally use the water or any other kind of substance, okay, so that the note does not stick. So initially this bath sponge was used to count the currency notes. Okay, now next phylum is Platyhelminthes. Body of this animal is slender and flat like a leaf or a strip, hence they are called as a flatworm. देखिए इनकी बॉडी जनरली फ्लैट होती है, चपटी होती है, आप देख सकते हैं. Okay, and they are called as the flatworms. These are very dangerous. Okay, if they enter in the human body, okay, they survive in the human body itself. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में अगर वो चले जाते हैं तो ये डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस. मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स, फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वाटिक. जैसे बताया कि एंडो मीन्स दे लिव inside the body of other organism. Suppose ये human body में चले जाते हैं, so they survive in the human body. Okay, whatever the food the human take, okay, it goes under the digestive system. Partially digested food is eaten by this animals. Okay, like liver fluke या tapeworm या planaria. ठीक है, तो वो बहुत डेंजरस है ह्यूमन बॉडी के लिए. Body is acoelomate and bilateral symmetrical. Okay, you can cut this body into two half equal parts and it is acoelomate, means इसमें coeloms absent है. आप देख सकते हैं ये liver fluke, जिसे ये माउथ है, ठीक है, ये ओरल सकर है जहाँ से फूड अंदर जाता है. दिस इज वेंट्रल सकर. ओके, जेनिटल अपार्चर, दिस इज अ सेक्स ऑर्गन्स, एंड दिस इज़ अ लीफ लाइक बॉडी स्ट्रक्चर. क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो पत्ते जैसी होती है, लीफ जैसी, इसके लिए इनकी बॉडी का नाम क्या है, लीफ लाइक बॉडी. दिस इज़ लिवर फ्लुक एंड दिस इज़ टैपवॉर्म, टेप जैसा होता है इसके लिए टैपवॉर्म, एंड दिस इज प्लेनेरिया. ये एक्सक्रीटरी पोर है लिवर फ्लुक का, जहाँ से वेस्ट सब्सटेंस निकाला जाता है बाहर बॉडी के. दिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज द बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म्स लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. 3 जर्म्स लेयर होते हैं इसमें. दिस एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी. ठीक है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंस होते हैं. एग्जाम्पल प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टैपवॉर्म एक्सेट्रा. सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन, coral leaves are present in the ocean. So surprising information, coral reefs are present in the ocean. These reefs are actually colonies of specific cnidarian, a precious stone called coral, and the coral powder used in Ayurvedic is derived from these reefs. Okay, now see, this is a special type of reef you can see which is generally present in ocean. Ocean में, महासागर में पाए जाते हैं, समुद्र में. ठीक है, और ये जो इसके पाउडर है, ओके, जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन या जो दूसरे मेडिसिन होते हैं इसमें इनके पाउडर पाए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फाइलम एस्केलहेलमिंथेस. बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और अ सिलिंड्रिकल, हेंस दे आर कॉल्ड एज दी राउंड वॉर्म. देखिए इनकी जो बॉडी होती है जनरली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और राउंड होती है. ओके, सो इसके लिए इसे बोलते हैं राउंड वॉर्म. दिस एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट्स. फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. देखिए इनके जो ये जो एनिमल्स होते हैं जनरली फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, बाहर रहते हैं.
लेकिन ये एंडो पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है, दूसरे के बॉडी के अंदर रहते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी, एंड दे आर एक्वेटिक, they live survive in the water also as well as on the land also. Body of this animal is triploblastic and pseudocoelomate. Now this is triploblastic मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, तीनों जर्म लेयर है होते हैं इसमें, एंड इट इज सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट मतलब इसमें सिलोन्स एब्सेंट होते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड एंड कन्वर्टेड विद अ टफ क्यूटिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उनके ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है, वो टफ क्यूटिकल होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में, वहाँ पे स्टमक में जाके ये सर्वाइव करते हैं। जनरली व्हाट हैपन दैट ह्यूमन बॉडी स्टमक रिलीज अ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, और वो गैस्ट्रिक जूस की वजह से जितने भी बैक्टीरियास होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन वो गैस्ट्रिक जूस का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट दे सर्वाइव इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन। ओके, क्योंकि इनके ऊपर एक टफ क्यूटिकल होता है जिसके वजह से गैस्ट्रिक जूस का इसके ऊपर कोई असर होता नहीं है। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मीन्स मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट। हियर यू कैन सी दिस इज द मेल, दिस इज अ जेनिटल एपेचर, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। दिस इज फीमेल एस्केरी एंड दिस इज मेल एस्केरी। ओके, दिस इज टेल एंड दिस इज both the tail of male and female, and this is a whole. Body of this animal is non-segmented and covered with a tough cuticle. These animals are unisexual. Example: ascaris, intestinal worm, filarial worm, lower eye worm, etc. ठीक है, so these are the some example of phylum Aschelhelminthes. Next, phylum Annelida. Now phylum Annelida में ये सब examples है earthworm, leech as well as nereis. Okay, so let us see. First, body of these animals is long, cylindrical and metamerically segmented. Now metamerically means equally segmented. ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है जनरली लॉन्ग होती है, जैसे अर्थवॉर्म आप देख सकते हैं, या लीच देख सकते हैं, या नेरिस देख सकते हैं। ओके, एंड दे आर सिलिंड्रिकल एंड इक्वली डिवाइडेड, इक्वली सेगमेंटेड। जैसे अर्थवॉर्म के आप देख सकते हैं छोटे छोटे लाइन्स हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज सेगमेंट्स, एंड पूरी बॉडी को बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडीज। Most of the animals are free living, but few are ectoparasites. Free living animals may be marine or freshwater dwellers or terrestrial. ठीक है, जनरली ये जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये ectoparasites है, मीन्स दे लिव आउटसाइड द बॉडी। ओके, but depend on the human body only, but does not go inside the body, but live outside the body. Okay, on the body आप बोल सकते हैं ऐसा। Okay, some are free living, some are survive in the water, salt water, and some are survive in the fresh water, means मीठे पानी में। These animals are triploblastic. Triploblastic means इसमें तीनों जर्म्स लेयर है, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड यूसिलोमेट्स, इसमें सिलोमेट्स प्रेजेंट है। दे हैव द सेटा और पैरापोडिया और सकर फॉर अ लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेटा और पैरापोडिया मीन्स लेग्स। ओके, फॉर द मूवमेंट्स दे हैव, फॉर द मोशन दे हैव दिस सूडोपोडिया, या तो सॉरी पैरापोडिया या सेटा, जिसे लेग्स बोला जाता है। देयर बॉडी इज कवर्ड विद अ स्पेशल क्यूटिकल, ओके, दैट इज थिक लेयर। दिस एनिमल्स आर आइदर hermaphrodite or unisexual. Okay, sometimes male and female is present in one body itself, and sometimes male and female present in the separately. Example: earthworm, leech, nereis, etc. देखिए आप देख सकते हैं, दिस इज earthworm, दिस इज द माउथ। ओके, दिस इज सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। ये जो बीच का पोर्शन है उसे क्लाइटिलियम बोलते हैं, और जो एनस है, एनस मीन्स व्हाट, द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज रिलीज फ्रॉम देयर। ओके, सिमिलरली फॉर द लीच ऑल्सो एंड नेरीज ऑल्सो। Okay, next is phylum Arthropoda. This is very important phylum, okay, and this is one of the biggest phylum. Okay, so very important, pay attention. These animals have joint appendages. Joint appendage means joints are present. जैसे हम लोग में भी joints होते हैं, elbow में joints होते हैं, हम अपने हाथ को या पाँव को मोड़ सकते हैं, ठीक है। So therefore similarly they are called as joint appendages. तो सिमिलरली ये एनिमल्स में भी जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज द आर्थ्रोपोड्स। इसके लिए नाम ही है आर्थ्रोपोड्स, मीन्स जॉइंट अपेंडेजेस आर देयर।
Planet Earth has the highest number of animals from this phylum, hence it is the largest phylum with high successful animals in animal kingdom. So ये फाइलम बहुत बड़ा फाइलम है, इसके लिए उसको हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फाइलम बोला गया है प्लैनेट अर्थ के ऊपर. दिस एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशन टू द हाईएस्ट माउंटेन. मीन्स समुद्र से लेके पहाड़ों तक हर जगह ऐसे टाइप के एनिमल मिल जाएंगे जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट होते हैं, उसके अंदर आते हैं. बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, मीन्स उसमें तीनों जर्म्स लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. यूसिलोम सीलोम इसमें प्रेजेंट है एक्चुअल में. ठीक है. बायलैटरल सिमेट्रिकल, ओके, दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल. ओके, इफ़ यू कट यू विल गेट अ बायलैटरल इमेज एंड सेगमेंटेड बॉडी. इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है जैसे अर्थवर्म की. चिटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड द बॉडी. देखिए उनकी जो स्केलेटन होती है, एक्सो मीन्स बाहर की जो स्किन होती है, वो चिटिनस से बने होते हैं. चिटिनस मीन्स एक मॉलिक्यूल्स होता है जिससे उनकी स्किन बनी होती है. जैसे ह्यूमन बॉडी में एक्सोस्केलेटन कैसे बनी है, हेयर से. बर्ड्स में आप देखेंगे तो उनकी स्केलेटन कैसे बनी है, फेदर से. ठीक है. वैसे ही आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनकी स्केलेटन किससे बनी होती है, एक्सोस्केलेटन चिटिनस से. दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मीन्स मेल एंड फीमेल प्रेजेंट सेपरेटली. एग्जाम्पल क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेड, सेंटीपेड. मिलीपेड मीन्स उनके बहुत सारे पाँव होते हैं, मिलियंस पाँव. ठीक है. सेंटीपेड मतलब 100 पाँव होते हैं. ठीक है. ऐसे पुराने ज़माने में ऐसे नाम दिए हैं उन्होंने, मिलीपैड, सेंटीपेड. कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एक्सेट्रा. देखिए यहाँ पे एग्जांपल है. ओके, सो दिस इज़ अ बटरफ्लाई, दिस इज स्कॉर्पियन, दिस इज सेंटीपीड एंड यहाँ पे देखिए ये कॉकरोच है जहाँ पे इसके एंटीना है जो सेंसेशन के लिए काम होते हैं, सेंस करने के लिए. ओके, दिस इज द हेड, दिस इज थोरेक्स पार्ट. थोरेक्स मतलब नेक. abdomen which is called a stomach part and this is wings. Okay, now let's think this. ये कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं इसको. फर्स्ट, what types of benefit and harm occur to human from the animal of phylum arthropoda. ठीक है. तो हार्म क्या है और बेनिफिट क्या है. तो पहले बेनिफिट की बात करते हैं. बेनिफिट आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में कौन से फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जैसे हनी बी. ओके, फ्रॉम हनी bee come under the phylum Arthropoda. Okay, so honey bee, from honey bee we get honey. Silkworm, from silkworm we get silk. So these are the benefits. And what is the harmful, जैसे grasshopper. Okay, this also come under the phylum Arthropoda. So grasshopper is very it is dangerous because they eat the crops. ठीक है. खेती खराब कर सकते हैं, तो that is the disadvantage, that is the harm. Second question, which are the animals from phylum Arthropoda those have shortest and longest life span. देखिए यहाँ पर शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन वाला जो ऑर्गेनिज्म है फाइलम आर्थ्रोपोडा में वो है मे फ्लाई. इट कम्स, फ्लाई मीन्स मक्खी होती है और मे मतलब मे के महीने में आता है. ठीक है. ये मक्खी, इसके जो एज होती है इट इज लास्ट फॉर 24 आवर्स ओनली. ओके, आफ्टर 24 आवर्स इट डाई. 24 घंटे खाली. ठीक है. सो इट सर्वाइव आफ्टर 24 आवर्स इट डाई. सो इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड एंड द लॉन्गेस्ट वन इज़ लॉबस्टर. ठीक है. लॉबस्टर्स मीन्स झींगे जैसा होता है वो. ठीक है. लॉबस्टर्स. ठीक है. इनकी जो एज होती है, लाइफ स्पैन होती है, इट इज़ दे सर्वाइव राउंड अबाउट 100 years. ओके, सो दिस इज़ द आंसर. Why is had been said that only insects directly complete with the human for the food. ठीक है. ऐसा क्यों बोला जाता है कि इंसेक्ट्स ह्यूमन से डायरेक्टली compete करते हैं, कंपटीशन देते हैं फूड के मामले में. बिकॉज इंसेक्ट्स, अगर कोई खेती है, ठीक है, फसल है, तो उस पर इंसेक्ट्स अगर अटैक करते हैं तो पूरी फसल खेती ख़राब हो सकती है. राइट. तो इसके वजह से अगर क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं तो डायरेक्ट इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बीइंग. So therefore it says that insects attack on the crop and they eat. Therefore we can say that the insects directly compete with the human being. ठीक है. Okay, next is phylum Mollusca. Now phylum Mollusca. Body of these animals is soft and slimy, hence they are referred as a mollusk. Mollusk means what? Soft. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ऑक्टोपस है. ठीक है. तो उनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी सॉफ्ट होती है, इसके लिए वो मोलुस्का बोले जाते हैं उसको. दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम. फर्स्ट फाइलम इज़ आर्थ्रोपोडा, जैसा भी आपने देखा.
तो सेकेंड नंबर जो आता है वो फाइलम मोलुस्का का आता है. दिस एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, मीन्स दे कैन सर्वाइव इन द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड. मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलुस्क आर मराइन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर एंड ड्वेलर्स, मीन्स ज़्यादातर समुद्री में पाए जाते हैं लेकिन कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं. बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, मीन्स इसमें तीनों जर्म्स लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. यूसिलोमेट, यूसिलोमेट मतलब इसमें सीलोम प्रेजेंट है. टू नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट, ये सेगमेंटेड बॉडी नहीं है, ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म तो वैसे सेगमेंटेड बॉडी होती है. ये सेगमेंटेड बॉडी नहीं है, नॉन सेगमेंटेड है और सॉफ्ट है. एक्सेप्ट एनिमल लाइक स्नेल देयर बॉडी शो द बायलैटरल सिमेट्री. सब एनिमल नहीं, खाली स्नेल को छोड़कर, ठीक है. ओनली एनिमल एक्सेप्ट लाइक एनिमल लाइक स्नेल देयर बॉडी शोज द बायलैटरल सिमेट्री. स्नेल को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन है वो, ठीक है, बाकी सबकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्री है. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन, हेड, फुट एंड विसरल मास, ठीक है. हेड मतलब सर, फुट मतलब पाँव और विसरल मास मतलब स्टमक के साइड. विसरल मास इज कवर्ड विद द मेंटल. दिस मेंटल सीक्रेट्स अ हार्ड calcareous shell. This shell may be the external or internal or even the absent in some cases. देखिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसा शेल हो, जैसे यहाँ पे शेल है, आप देख सकते हैं स्नेल में शंख जैसा एक शेल बना हुआ, ठीक है. ये एक एक्स्ट्रा शेल है जिसे बोलते हैं कैल्केरियस शेल. ये हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हर एक एनिमल में हो, ये फाइलम के ज़रूरी नहीं है. ओके, मे बी, मे नॉट और एब्सेंट भी होता है. दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. Again, the male and female are present separate. Example: bivalve, snail, octopus, etc. Surprising information. Octopus is the most clever animal among all the non-chordates. It can change its color. देखिए आपने पता होना चाहिए कि octopus can change its color according to the environment. Okay. It can perform 3 type of locomotion like swimming, creeping and walking. तीनों टाइप के मोशन वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. Next is phylum Echinodermata. Okay, phylum Echinodermata. देखिए इसमें क्या है. Calcareous spines are present on the body of these animals, hence they are called as an echinoderms. अच्छा, नाम क्यों echinodermata? echinoderms का मतलब क्या होता है कि इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, इसमें कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनकी बॉडी पे, थॉर्न्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए इनका नाम है echinodermata, ठीक है. दिस एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन द ओशन, समुद्र में सिर्फ पाए जाते हैं. देयर बॉडी इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, मीन्स अगेन 3 जर्म्स लेयर्स आर प्रेजेंट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. Eucoelomeans, coeloms are present here and it is radially symmetrical in adult stage. Adult stage में radial symmetrical है. However, they show the bilateral symmetry in larva stage. मतलब जब वो छोटे स्टेज पे होते हैं, जब वो बच्चे होते हैं छोटे लार्वा स्टेज पे, ठीक है, उस टाइम पे बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, बट अडल्ट स्टेज पे वो रेडियली सिमेट्री हो जाते हैं. दे परफॉर्म द लोकोमोशन, मीन्स मूवमेंट होता है उनमें विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब फीट. ट्यूब फीट्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे. सम एनिमल्स आर सेडेंट्री. देखिए इसमें ये मूव भी करते हैं लेकिन कुछ एनिमल्स मूव नहीं करते हैं, ठीक है. जो मूव करते हैं, जो लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, वो किससे मूव करते हैं? ट्यूब फीट से, ठीक है, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं खाने के लिए. और सम एनिमल्स दे कैन नॉट मूव. ओके, दे आर कॉल्ड एज सेडेंट्री. दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पाइंस और ओसिकल्स प्लेट्स. अभी बताया आपको कि थॉर्न्स जैसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे स्टार फिश आप देख लीजिए, सी कोकुम्बर देख लीजिए, सी उर्चिन देख लीजिए, उनकी जो बॉडीज़ होती है, ठीक है, इट्स लाइक अ थॉर्न्स, ठीक है, कांटे जैसे स्ट्रक्चर उनकी बॉडी से कवर होते हैं, ठीक है, उनकी स्किन ऐसे बनी रहती है. दिस एनिमल्स हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. इवन इफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इज कट, ओके, दे कैन रीजनरेट देयर बॉडी. So this is a good thing. These animals are mostly unisexual, means male and females are different. Example: starfish, sea urchin, brittle star, sea cucumber, etc. Okay, so this was about the phylum Echinodermata. Okay, next is phylum Hemichordata. Now see, phylum Hemichordata. Hemichordata. Body of this animal is divided into 3 parts: proboscis, collar and trunk. तो आप देख सकते हैं इनकी जो बॉडी है, ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एनिमल्स विच कम्स इन अ हेमिकॉर्डेटा. प्रोबेसिस, ओके, जो सूंड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. कॉलर मीन्स लाइक नेक, ओके, एंड द ट्रंक दैट इज़ अ बॉडी पार्ट.
it is divided into three main part. You can see here. Notochord is present in proboscis region only, hence they are called as the hemichordates. Okay, why the name comes hemichordates? Because notochord present होते हैं खाली proboscis हिस्से में, मतलब ये वाले हिस्से में, only in this part notochord is present. Okay, so therefore they comes under the therefore they are named as hemichordates. These animals are also called as the acron worm. These animals are marine animal, lives in a burrow in sand. Okay, generally ये समुद्र में पाए जाते हैं और ये बिल में रहते हैं, जैसे स्नेक्स वैसे ही ये एनिमल्स रहते हैं. ठीक है, सैंड में, मिट्टी में नीचे रहते हैं बिल में. दे हैव 1 to many pharyngeal gill slits. ठीक है, इनमें एक से ज़्यादा pharyngeal gill slits होते हैं. दे आर यूनिसेक्सुअल और सम मे बी द हार्मोफ्रोडाइट, मतलब इसमें मेल फीमेल अलग होते हैं, लेकिन कुछ में मेल फीमेल एक में ही होते हैं. एग्जाम्पल बैलेंग्लोसिस, सैक्लोग्लोसिस. यू कैन सी. Through the viewpoint of evolution, Balanglosis is considered as the connecting link between the two non-chordates and chordates. Means Balanglosis जो एनिमल है, जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा में आते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है. कनेक्टिंग लिंक मतलब ये नॉन कॉर्डेट्स के भी प्रॉपर्टी बताते हैं एंड कॉर्डेट्स के भी प्रॉपर्टी बताते हैं. सो इट कम्स अंडर द कनेक्टिंग लिंक. सो दिस एनिमल शोज द कैरेक्टर ऑफ बोथ द ग्रुप. ओके, सो आई थिंक सो इट इज़ क्लियर. सो we'll stop here for the day. Okay, just go through this lecture once again. Okay, and in next lecture we'll continue the remaining phylum. Okay, thank you.